Hi guys, welcome back. We started our second chapter accounting process. In that we considered first unit journal and discuss how to pass the entries, and we even took the another lecture to get to know how to pass the entries in case of GST. Correct. So we discussed in the two parts generally how to pass the entries, and if I summarize that our discussion, we were having two methods or two ways to pass the entries, but from the two method we will be getting the same entry, remember guys. And one of the both the two methods is having separate approach to follow, but the entry will be same. So one of the method was traditional approach and another method was your modern approach or accounting equation approach. If you remember, one traditional was discussing to deal with the classification of accounts and apply the golden accounting rules and get the entry, and this modern approach was focusing on classification into these five items like asset, liability, income, expense, and capital, and it has given the default balances like assets and expenses will have debit balances, and liabilities, incomes, and the capital will have the trade balances. Default balances देकर एक रूल बोला था कि if ever increasing we have to give the default balances, that is same balances. They are decreasing, we have to give the opposite balance, opposite nature to get the debit entry. So this was the two method we discussed elaborately with the sums, and in case of even in GST, we discuss what is all tax and how these laws are formed for the tax, and how we have to pass the entry in case of sale and purchase, and there is something called output and input GST. Remember guys, in the case of purchase it will we have to raise our input, in case of sales we have to raise the output. Output GST will be acting as liability, input GST will be acting as an asset, and we have to net off this, and we have the own rules for netting off. If you remember, input GST for IGST we can only net off with the IGST amount, and CGST HGST or in any proportion or in any order. But we come to CGST HGST, we can set it out first with the CGST HGST respectively, or we can set it out with IGST, but we can't set up the CGST with HGST and HGST with CGST. This was the methods or the rules for setting off, right? And even we have the two types of supply, the intrastate supply and interstate supply. Depending on this intra-interstate supply, CGST, HGST, IGST or UTGST will apply. Clear? And for classification of intra-interstate supply, we discussed two words called location of supply and place of supply. So I'm just letting you know कि ये सब discuss हुआ था, and we completed our first unit called general. Correct. Now we can move further with today's discussion, where we will be discussing our unit 2 for the accounting process called ledger, and simultaneously we will be taking our unit 3 called trial balance. So ledger and trial balance are very simple. It will be just putting on the screen and getting awareness of the ledger, but there are few points to be considered in the ledger, and I will be letting you know period, and we can close this unit as well very smoothly. Very easy unit, and it's very simple when you understand the journal entries properly. Okay, so give me a minute, I will make my screen ready. We can start the discussion with the ledger. Yeah guys, so when we see now what is ledger, if you remember our discussion, I told you at the starting there is something called account, right? If you remember, we were discussing those four word: account, accountant, accountancy, and accounting. Correct. So तब I told you account as of now you consider as a statement. Consider as a statement. Understanding? So now we will be linking this ledger word with now account. Ledger word with now account. And if you remember, ledger is the second stage in the accounting cycle where we actually classify the data. So when we remember the accounting cycle, we will record, we will classify, we will summarize, then we will be having our financial statement. So as per that cycle, ledger will be coming as a second stage of accounting. And if you remember, the first step of the recording, first step that was recording, we told whatever we do that was known as generalizing, and in the second step of classifying we do in the ledger, but the process of doing or classifying is known as posting. Understand? If you remember those words, I already introduced you there. Like the word classification is done in the book called ledger, and the process of doing the classification is known as posting. Clear?
Now we will be seeing what is actually this account. So why there is a need of classification, guys? Why there is a need of the second step? Why there is a need of the second step, classification? You understand the purpose now? We record the data, right? And if you remember, recording is done in chronological order, right? So as soon the data, as soon the transaction happens, we keep on recording. Sale, we record sale entry. Purchase, we record purchase. Paid rent, we record the rent entry. If we receive the any sale amount, we write the receipt entry. If we deposited, we write deposit entry. So as such the transaction happens, we record in that way. That was only known as chronological order. But why there is in the classification is we record there as the transaction happens, but at a certain time financial statements are prepared at the end of the year, which is in March. But suppose in June, mid of the accounting period for the June or the July or the August, sometimes I may require the balance of only cash. I may require the balance of only cash, or sometimes only what is the total amount of sales we did till 3 months. Understanding? So particular nature of transaction data, if I want in middle of the year, that can be done only through classification, which is done in the book called ledger, guys. Understanding? So in mid of the accounting period, we to get the numbers for our decision making or some workings, we need the particular nature of transaction to be kept in particular place. That is known as classifying. So recording, we are recording as such it happening, but we classify here. Now after recording, we throw all nature of transaction in one particular statement. If they are related to salary, we throw in one account called salary account. If they are related to rent, we throw in the rent. If they are related to cash, we throw in them into cash. Understanding? So for particular nature of transaction, we classify them. What is the need now? During the accounting period, if we need certain values or certain balances of the particular nature of transaction, for example cash balance or the rent amount or the sales amount in mid of the August or end of the August or the end of the June, July or the September, we have to, that can be plotted only by the ledgers. Understanding? So that is the reason we come up with a classification. Understanding, guys? Now when we see this classification, which is ledger, this is known as your second stage of your accounting, which is known as your second stage of accounting. In the chapter, actually you should learn only, you should actually have the grip on three things, guys. Should have the grip on three things. One is opening of your accounts. So how to open your accounts, we will be discussing it. Understanding? So format of the ledger and all we will be covering here. And the second step is something called posting. How to classify the data after opening, how to classify that. We have some posting rules, very basic rule. Whatever we do, that only we keep in the words, that only will become the posting rules. Clear? And the third thing which you have to be aware of, and this is very important one, something called your closing of ledger and getting the balances. Understanding? So this is something important step, I can say last step. So these three things we should get aware, then only, then completely I can say our ledger discussion is done. Understanding this? So you should be aware how to open the ledgers and how to post the entries, and at the end, very importantly, how to close the ledgers. Clear, guys? And here I will have an elaborate discussion at this third step, that is your closing and balancing. Some accounts will get closed, some account will get balanced. What is the difference of this close and balance? We'll be discussing at the third stage of the lecture. Clear, guys? Now I will take you one on one. What is the first step, opening? How to open the ledger? So we got the specific format there. So that format is generally called the T-shape format, where we have the two side, debit side and the credit side. And in the middle of the statement, we will be writing the ledger name. We will be writing the ledger name like salary account. Now ledger is replacing with the what called account. Understanding? So account is the statement which give particular nature of class name, particular nature of class of transaction. Salary account will give the all the details of salary transaction, or the rent account will give the details of rent transaction. The same way opening, we got the format, we got two side. T-shape format is there, we got two side, debit side and credit side. We have date column, we have then particular column, then we have the JF column. JF is something, if you remember in ledger we were having LF, and in journal we were having LF, and in ledger we will be having
JF. So we will be giving cross reference. तो वहाँ के पेज नंबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ के पेज नंबर्स वहाँ लिखेंगे, so that रिकॉर्डिंग कहाँ क्लासीफाई समझ में आता, क्लासिफिकेशन कहाँ से आया समझ में आता, यू अंडरस्टैंडिंग द फ्लो, रिकॉर्डिंग कहाँ से आई समझ में आता, एंड क्लासिफिकेशन किस एंट्री से रिफर हो रहा है, विल बी गेटिंग द क्रॉस रेफरेंस ऑफ दिस नंबर JM LF, एंड विल बी हैविंग एट द एंड हियर अमाउंट. Same here also, date, particular, JFN, amount. This will be your opening. So whatever accounts we are used in recording, all those accounts will get open. All those accounts will get open. Even the single transaction we have, we will be opening our ledgers. तो अगर सिंगल ट्रांजैक्शन भी वो लेजर का पूरे 12 महीने में स्टिल वी विल बी ओपनिंग आवर लेजर, विल बी पोस्टिंग दैट ट्रांजैक्शंस एंड विल बी गेटिंग क्लोजिंग. विल बी we discussed the third step. Some accounts will get closed, some accounts will get balanced. So what is the difference, I will be discussing it. Clear guys? That was your opening. Opening is clear. Only format जानकारी करना है ये opening stage में. Once we are open the ledger, we will be posting. Clear? So if you remember the word posting, I told you the way of classification is only known as posting. So how we post the data? How we post the data? Simple it is. See, for example, what for cash sales, what the entry we wrote guys, for cash sales, for entry we read there are two things, cash and sales. For cash it is real account, it is coming in, to debit what comes in, sale income, normal account, credit the incomes and gain. So entry will be cash account, debit to sales account, correct. So this was our entry now. So we will opening two ledgers. This was our entry, we will be opening two ledgers. So opening just now we read, so we will be opening these two ledgers. One is your cash and one is your sales, debit, credit. Clear? So we will be having debit, credit. So we are opening the ledgers. I'm just showing you posting कैसे करते हैं. Understanding? So posting, you see cash is getting debited now. When you see the entry, cash is getting debited. It means in ledger also we have to give the effect on debit side, because cash is getting debited. So in ledger also we will be giving effect on debit side. But how to show that effect? We will be giving reference to credit. We will be giving reference to credit. Understand the word? मतलब जब जो अकाउंट डेबिट हुआ ना, वो लेजर में भी डेबिट ही होगा, मतलब डेबिट में भी उसका इफेक्ट आएगा, बट उसका रेफरेंस देंगे क्रेडिट को. मतलब क्या है, विल शो दिस अकाउंट इज गेटिंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ दिस अकाउंट. अंडरस्टैंडिंग? तो विल हियर फॉर एग्जांपल विल से कैश इज गेटिंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल्स, सो विल गिव रेफरेंस टू सेल्स. Understanding guys? So whatever account is getting debited in general will also get debited in ledger, but reference will be given to credit account. तो उससे क्या समझ में आता, we will be showing कि ये अकाउंट डेबिट हुआ. डेबिट साइड का मतलब डेबिट हुआ, बट किसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ. क्रेडिट, ये क्रेडिट क्या था, सेल था. अंडरस्टैंडिंग? इसके कारण हुआ बोल के विल बी गिविंग रेफरेंस टू क्रेडिट अकाउंट. अंडरस्टैंडिंग? एंड अमाउंट विल बी सेम आ गया जो अपन रिकॉर्डिंग में लिखे. क्लियर? एंड सेम जो अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ विल बी गेटिंग क्रेडिटेड, विल बी गेटिंग क्रेडिट इफेक्ट इन लेजर ऑल्सो. जैसा डेबिट हुआ डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट इफेक्ट. बट डेबिट में किसको दिए रेफरेंस, क्रेडिट को. क्रेडिट में किसको दिए रेफरेंस, डेबिट को. अंडरस्टैंडिंग? सो विल बी गिविंग रेफरेंस टू डेबिट हियर बाय सेइंग कैश अकाउंट. तो अपन क्या बोलते हैं, कैसे इसका इंटरप्रिटेशन क्या है यहाँ कैश लिखने से, कि सेल अकाउंट हुआ क्रेडिट, बट किसके कारण हुआ क्रेडिट, बिकॉज ऑफ कैश. तो सेम कैश अकाउंट हुआ डेबिट, किसके कारण हुआ, सेल. तो व्हाट इज द पोस्टिंग रूल? अभी सिंपल, जो अकाउंट डेबिट हो रहा वही लेजर भी डेबिट होता, डेबिट साइड में इफेक्ट आता, बट रेफरेंस क्रेडिट को देते. और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ वो लेजर भी क्रेडिट होता, इफेक्ट भी क्रेडिट में चाहता, बट रेफरेंस देते डेबिट अकाउंट को. बट अगेन हियर वी हैव टू थिंग्स टू रिमेंबर. वी विल यूज द वर्ड टू फॉर डेबिट्स एंड विल बी यूजिंग बाई फॉर क्रेडिट. तो बाई कैश या टू कैश. अंडरस्टैंडिंग? डेबिट क्रेडिट केस पे टू बाई विल बी यूजिंग. So that is your rule for posting. Second say, what is the rule? जो डेबिट हुआ वो डेबिट ही होता, बट रेफरेंस देते क्रेडिट को. करेक्ट? जो क्रेडिट हुआ वो लेजर में भी क्रेडिट होता, बट रेफरेंस देते डेबिट को. अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो इफ आई से दिस वाज हैपनिंग इन जनरल, सेम लेजर में भी वही होता, बट रेफरेंस विल बी गिविंग टू क्रेडिट. सो दिस वाज हैपनिंग इन योर जनरल, ledger में भी वही होता, but reference will be giving to debit account. And here we'll be using for debit side, we'll be using to as a word, and here we'll be using
buy as a word. Clear guys? This is only the posting. Closing we have certain थोड़ा डिस्कशन रहेगा, तो अभी तो अपन एक बार अपने PDF से कवर कर लेंगे and we can see here now. Ledger. So what is there? Recorded entries are classified and grouped into preparation of accounts. So group करेंगे. So the book which contain all the sets of accounts, that is real, personal, nominal, is known as ledger. Ledger is the book में जहाँ पूरे accounts रहते हैं. Here guys. Now to know the what is this it is also known as principal books of account. So general is known as original book of entry. General is known as guys original book of entry, but ledger is known as principal book of account. Is known as principal book of account. Clear है guys? So account wise balance of each is determined. So this is the copy of your I can say format. You will having middle account name, debit side, credit side, and this T-shape account will be having shape date particular, JF amount, date particular, JF amount. JF is something ledger which you are actually getting the general folio. In ledger we are getting general folio number, and in general we will be getting ledger folio number. This is the page numbers of general ledger. We will be giving the cost reference. Understanding? So see the posting rules. Simple, we learn process of transferring, that process of classifying only known as posting. So process of transferring credit and debit items to the respective accounts is only known as posting. So what is the rules here? You have to open the account, that's already done. But see the word to is used to particularly column to amount which is written on the debit side, and while buy will be using on the account which is used on the credit side. So to buy will be using the word, but what is the rule? Whatever account is getting debited in general will also get debited in ledger. Debit in general, debited in ledger, but reference will be given to credit account. Same, debit, credit. Reference will be given to credit account. Same, you can see the opposite one. The account which is getting credited in general will get credited in ledger, but the reference will be given to debit account. Understanding guys? This was your funda for posting. Now at the end we will be having balancing an account or closure of accounts. Then we will be having the sums. Understanding guys? And this is very important now, closing or balancing. Okay, give me a minute, we can start the discussion. Yeah guys, so very important step in ledger guys. Stay focused here. This if you are getting thorough with this discussion, ledger is done. Very simple. So we are focusing on third step, which is your closing or I can say balancing. Okay, closing or balancing. So you focus here guys now. Yeah, now I change the screen. So closing or the balancing. If you remember, we are having three types of accounts. As per the traditional approach, we are having three types of accounts. What were there guys? Personal, real and nominal. Correct. Now if you see our capital and revenue expenditure discussion, that will be helping us here now. I told you nominal account will get closed. Nominal should get closed guys, and the personal real account should get balanced. Should get balanced. What is the difference now? What is the difference now? You focus on my rhythm and the what I am trying to say you, but the word are simultaneously used to close and balance. You will get the confusion. What is there? What I am trying to say you here? Normal account, which is your income and expenditures account, should get closed guys. Should get क्लोज मतलब क्या है कि लेजर्स ओपन हो गए, उनमें ट्रांसफर हो गए, एंट्रीज पोस्टिंग होगी, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, बट इनका जो साल के आखिर में ये अकाउंट्स क्या होना गाइस? क्लोज। मतलब क्या है, इनको कैसे भी बंद करना और जो भी इनका बैलेंस सी इनको जब सी इफ आई एम ओपनिंग सम सैलरी अकाउंट विच इज एन एक्सपेंस अकाउंट, और इफ आई एम ओपनिंग सम परचेज अकाउंट विच इज एन expense account again, if I am opening a sales account which is an income account again, so इनको एक्सपेंस रहे तो क्या रहेगा डेबिट बैलेंस आते रहेगा उसको, एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, इफ यू रिमेंबर आवर मॉडर्न अप्रोच,
एंड पर्सन विल आल्सो हैव डेबिट बैलेंस, डेबिट में ही आते रहेंगे इनकी एंट्रीज, एंड सेल विल हैव क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये क्रेडिट में इनकी एंट्रीज आते रहेंगे, करेक्ट। नाउ एट द ईयर एंड दिस अकाउंट्स व्हाट एवर नॉर्मल अकाउंट्स आर देयर शुड गेट क्लोज्ड, मतलब क्या है, इनका बैलेंस जो भी आता ना ये, तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस करे उसको क्लोज करो, तो इसका जो भी बैलेंस है इधर ला लो, क्लोज करो, इसका जो भी बैलेंस है इधर ला लो, बट इन केस ऑफ इनकम्स विल गेट दिस बैलेंस ऑन अपोजिट साइड। तो ये जो क्लोज करना मतलब क्या है, इसका टोटलिंग करो, टोटल करके you have to transfer this amount in somewhere biggest nominal, you have to transfer this amount in biggest nominal, which is your P&L account, which is your P&L account। मतलब क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या करना, जितने भी डेबिट है एक्सपेंसेस के या जितने भी क्रेडिट है इनकम के अकाउंट्स है ना, उनको क्लोज करना। मतलब इसका क्लोज का मतलब क्या मालूम गाइस, ये लेजर्स विल नॉट कैरी इन नेक्स्ट ईयर। क्लोज का मतलब इज व्हाट इज द व्हाट आई एम सेइंग, क्लोज वर्ड का मतलब क्या है, सेंस है, मतलब क्या इंटरप्रेट करना चाहिए ये कंटेक्स्ट में अपन जो डिस्कस कर रहे हैं। क्लोज का मतलब इसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर को कैरी नहीं होना, ये साल के अंदर ही जो मर जाना। नॉर्मल अकाउंट विल डाई, normal accounts will die by transferring their balance to biggest nominal called P&L, understanding। तो normal accounts will get die, but before dying जो भी इनका बैलेंस है इनको we have need to transfer them into biggest nominal called P&L। तो that's the reason for transferring we need transferring entry, for this transferring balances we need ट्रांसफरिंग एंट्रीज। कैसे रहेंगे ट्रांसफरिंग एंट्रीज, सिंपल है। अब एक्सपेंसेस ऑलरेडी डेबिट में, एक्सपेंसेस का पूरा बैलेंस कहाँ है, डेबिट में है, तो इसको मेरे को कहाँ ट्रांसफर करना है, मतलब इसको ट्रांसफर करना मतलब क्या, इसको क्लोज करना मतलब क्या है, इसको क्रेडिट करता हूँ वो टोटल से, एंड दैट टोटल अमाउंट विल ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ P&L, ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ P&L। सेम कम टू इनकम अकाउंट्स, तो इसका ऑलरेडी बैलेंस इनकम में है, इनकम में ऑलरेडी इनकी वैल्यूज है, तो इसको क्लोज करना बोलते हो, इनकम को डेबिट करता हूँ और ये P&L को क्रेडिट करता हूँ, P&L को क्रेडिट करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, once again I am saying you, nominal account will get close, nominal account will get close। close का मतलब क्या है, they have to die here only, their balances can't be get carried to next year। अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू के हिसाब से देखे तो। सो दैट द रीजन जितने भी डेबिट्स है ऑलरेडी डेबिट बैलेंस, डेबिट में उनका लोड होते गया, इंक्रीज होते गए, तो एक्सपेंस को अपन डेबिट करते गए, तो उनको क्लोज करना मतलब क्या है, उनका जितना भी वैल्यू है दैट विल गेट ट्रांसफर टू P&L के डेबिट साइड में। बिकॉज क्लोज करने के लिए व्हाट ट्रांसफरिंग एंट्री विल राइट, ट्रांसफरिंग एंट्री क्या है, एक्सपेंस के लिए P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, तो P&L डेबिट होगा, ये पूरे एक्सपेंसेस क्रेडिट हो गए, बिकॉज क्रेडिट के एक्सपेंसेस ऑलरेडी डेबिट करे, उनका वैल्यू खाली ट्रांसफर करना है अभी अपने को। सेम विथ इनकम्स, ऑलरेडी क्रेडिट करते गए उनको, इनकम क्रेडिट करते रहते हैं ना अपन, इंक्रीजिंग क्रेडिट। अंडरस्टैंडिंग और मॉडर्न अप्रोच में देखो तो इनकम्स को विल हैव नॉमिनल के हिसाब से क्रेडिट, अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट करते रहते, बट इनका बैलेंस ट्रांसफर होना मतलब क्लोज होना, मतलब ये क्लोज जितना भी वैल्यू है ना वो वैल्यू विल ट्रांसफर टू P&L क्रेडिट साइड में, बिकॉज ऑलरेडी क्रेडिट में डेबिट करके P&L को क्रेडिट करते। अगर इसको ही मैं क्रेडिट करा तो और बढ़ता बैलेंस, दैट रीजन इसको डेबिट करना, इसको डेबिट करके P&L को क्रेडिट करना है, तो इसलिए इनकम्स डेबिट में आते P&L के, इनकम्स क्रेडिट में आते हैं और एक्सपेंस डेबिट्स में आते हैं। अंडरस्टैंडिंग गाइस, तो ऑल एक्सपेंस विल कम हियर और इनकम्स विल कम हियर बाय राइटिंग ट्रांसफरिंग एंट्रीज। क्लियर है गाइस, नॉमिनल का डिस्कशन क्लियर है। फिर से बोल रहा हूं, मैंने समराइज नॉमिनल अकाउंट का डिस्कशन, नॉमिनल अकाउंट शुड गेट क्लोज, मतलब क्या है, देयर बैलेंस शुड नॉट कैरीड इन नेक्स्ट ईयर, ये यहीं मरना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी याद करो तो इनको यहीं P&L में डाल देना। तो P&L इज द बिगेस्ट नॉमिनल, P&L अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट है, वो सबसे बड़ा नॉमिनल है, तो ये पूरे छोटे नॉमिनल उसमें जाके मरते। कैसा मरते, एक्सपेंसेस के ऑलरेडी डेबिट होते गए तो वो क्रेडिट होकर मरते और P&L को डेबिट हो जाते, और इनकम्स ऑलरेडी क्रेडिट होते गए डेबिट होकर मरते, P&L में क्रेडिट हो जाते। अंडरस्टैंडिंग, अब पूरे नॉमिनल किस में आएंगे, बिगेस्ट नॉमिनल कॉल्ड P&L, P&L भी एक नॉमिनल है, तो पूरे नॉमिनल क्लोज होना मतलब P&L भी क्लोज होना। तो इसको क्लोज कैसा करते हैं, इनकम एक्सपेंस का विल गेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, तो दिस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस विल गेट ट्रांसफर टू कैपिटल। तो सब नॉमिनल क्लोज होते हैं, छोटे नॉमिनल बड़े नॉमिनल क्लोज होते हैं, बड़ा नॉमिनल कैपिटल अकाउंट में क्लोज होता है। क्लियर नॉमिनल का फ्लो, क्लियर है गाइस। हाँ, व्हेन आई से रियल एंड पर्सन देयर इज अनदर ट्रीटमेंट, नॉमिनल का अलग है, रियल एंड पर्सन का अलग है। नॉमिनल का क्लियर है, नॉमिनल अकाउंट्स विल गेट क्लोज एंड देयर वैल्यू और द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू
biggest nominal called P&L by writing transferring entries. And P&L will also get because वो भी nominal है, उसका net profit loss आता, that will get transferred to capital account. तो नेट प्रॉफिट लॉस किसको देना, प्रॉफिट है तो भी ओनर को देना, लॉस है तो भी ओनर को देना. ओनर का अकाउंट कौन सा, कैपिटल का अकाउंट, इसलिए वहां जाता है. अंडरस्टैंडिंग द आइडिया, नॉमिनल अकाउंट से क्लियर है. नाउ व्हेन आई एम डिस्कसिंग फॉर रियल एंड पर्सनल, फोकस गाइस, व्हेन आई से फॉर रियल एंड पर्सनल, वर्ड इज यूज बैलेंस्ड. वर्ड इज यूज व्हाट, बैलेंस्ड. मतलब क्या है, ये अकाउंट्स क्लोज नहीं होते, ये अकाउंट्स बैलेंस होते, तो इनका कुछ वैल्यू बचता लेजर में, दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट. देखो वर्ड क्या है, बैलेंस शीट, मतलब पूरा बैलेंसेस है इसमें, वो शीट है वो सब बैलेंसेस दिखा रहा, और वो कौन से अकाउंट्स रहते, रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स ही रहते. सो नॉमिनल विल डाई इन P&L and personal and real account will get balance, and that balance will be transferred to balance sheet. Wording देखो, personal will get balance and their balance will transfer to balance sheet, and nominal will get close and their value or their amount, और वहाँ पे भी balance बोलता, और their balance will be get transferred to biggest nominal called P&L by writing transferring entries. And P&L is also nominal, तो वो भी close होता by transferring profit or loss to capital account, owners account. क्लियर है. बस क्लोज और बैलेंस का डिफरेंस समझाओ, समझाता इधर देखो. So suppose this is your cash account and this is your sales account. Understanding? So you got a sales, तो अब क्या होगा, कैश अकाउंट बढ़ेगा. सपोज 5 रुपीज़ का सेल करे, 5 रुपीज़ का कैश आया, 5 रुपीज़ का सेल्स आया, राइट. एंड अगेन वी रिसीव आवर ओल्ड पेमेंट, जो 2 रुपये आ गए किसी के आने का था, तो उससे क्या होता, डेटर घट जाता, करेक्ट. तो अपने डेटर का कुछ बैलेंस था, सपोज एक्स वॉज द पार्टी ऑफ द डेटर, तो डेटर मेरे को 2 रुपये देने का था. डेटर मेरे को सब जान दो, 2 रुपये नहीं, यू कैन कंसिडर. सपोज मेरे को डेटर 4 रुपये देने का था, तो 2 रुपये दे दिया, ये 2 रुपये आ गए इधर लिखा, और ये 2 रुपये आ गए बोल के इधर लिखा. अंडरस्टैंडिंग पोस्टिंग. 2 रुपीज़ आई रिसीव्ड कैश टू डेटर, 5 रुपीज़ सेल कैश टू सेल्स. बट अब देखो, यू सी नाउ कैश इज व्हाट, रियल अकाउंट. सो वो क्या होना, बैलेंस. मतलब क्या है, इसका बैलेंस कितना आ रहा, 7. तो विल राइट हियर 7 एंड विल बी राइटिंग हियर बैलेंस कैरीड डाउन. विल बी राइटिंग बैलेंस कैरीड डाउन. इतना बैलेंस आया, सॉरी इतना बैलेंस आया मेरे को. फिर नेक्स्ट ईयर में दिस विल बी ओपनिंग बैलेंस 7. दिस विल बी ओपनिंग बैलेंस 7. दिस इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस. सेम विद डेटा. डेटा क्या है, पर्सनल अकाउंट. डेटा क्या है, पर्सनल अकाउंट. वो भी क्या होना, बैलेंस. मतलब 4 थे, 2 आए और 2 आने के हैं, तो दिस इज माई बैलेंस. सो नेक्स्ट ईयर में और नेक्स्ट मंथ में दिस विल बी ओपनिंग बैलेंस कॉल्ड 2 रुपीज़. बट व्हेन वी कम टू सेल अकाउंट विच इज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल विल गेट क्लोज. नॉमिनल विल गेट क्लोज मतलब क्या है, ये 5 रुपये विल गेट ट्रांसफर टू P&L. विल राइट हियर P&L. बैलेंस नहीं लिखते, विल राइट हियर P&L. ये 5 रुपीज़ विल कम टू नाउ P&L इन द क्रेडिट साइड. देखो 5 यहाँ आया, फिर ये 5 डेबिट होके क्रेडिट में आ गया 5. तो विल राइट ट्रांसफरिंग एंट्री एंड विल बी राइटिंग इन द P&L एज by sales. We will be writing by sales. Understanding guys? तो उससे इनकम बढ़े, इनकम पूरे इधर आएंगे, एक्सपेंसेस पूरे इधर आएंगे. नेट प्रॉफिट और लॉस विल गो टू कैपिटल. विल गो टू कैपिटल. Understanding the flow guys? This was the difference between balancing and closing. तो बैलेंस का बैलेंस विल गो टू बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग करके ट्रांसफर विल गो टू बिगेस्ट नॉमिनल कॉल्ड P&L. फिर वो भी क्लोज होता है एज इट इज आल्सो नॉमिनल एंड विल गो टू कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर रियल एंड पर्सनल गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. सी नाउ आई एम डिस्कसिंग इट वंस. मैं आपको जो मैंने अब सब अपन डिस्कस करें, बट आपको मेन चीज़ हाईलाइट करके बता रहा एक बार. सी हियर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड, they are actually closed and transfer it to P&L. The balance in the end are transferred to the P&L. They are closed and transferred to P&L. Only personal and real accounts balances are ultimately shown in balance sheet at the end of accounting period. Understanding guys? And the capital account will get adjusted due to this profit and loss जो भी अपने nominal account से आ रहा. पूरा nominal will go to biggest nominal called P&L and P&L भी जो बना दो nominal वो भी close होता है in
capital account. And when I come to real and personal account, this will go to their balances will be carried forward to balance sheet. Why bhai only real and personal are getting carried forward? Real are all person accounts, artificial and natural person, and sorry persons are artificial and natural person, और real are all assets account. तो ये लॉन्ग टर्म में रहते, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रियल अकाउंट जो असेट अकाउंट से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, याद करो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बड़ा मोर देन 1 ईयर. रियल अकाउंट पर्सन अकाउंट क्या लेन देन का है, वो किससे आना किसको देना, तो वो मालूम रहना ना ओवर ऑफ द पीरियड किससे आना किससे देना, इसलिए दे विल नॉट टाइप. आ गया तो क्लोज हो जाते, दे दिए तो क्लोज कर देते. असेट अकाउंट असेट पूरा यूज हो गया तो पीरियड को चले जाते. अंडरस्टैंडिंग. बट इनिशियली दे विल बी गेट कैरीड फॉरवर्ड. दिस एज पर ट्रेडिशनल मेथड. या फिर मॉडर्न के हिसाब से, मॉडर्न ऑलरेडी बोला असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस गो टू नॉमिनल मतलब पीएनएल एंड द एसेट लायबिलिटी गो टू बैलेंस शीट. वो खुद ही मॉडर्न का अप्रोच तो पूरा क्लासिफाइड ही है, फर्स्ट स्टेप से क्लासिफाइड. क्लियर गाइस. नाउ वी कैन सी द इलस्ट्रेशन वन and we can make the entry. What is saying? Prepare a what stationery account. क्या prepare करना बोले everyone? Stationery account from the firm for the month of Jan, duly balanced off from the following data. तो stationery account बना बोल रहा अपने को. First क्या है? Inventory of stationery 480. Stationery account क्या है? Real person nominal guys. Stationery account is what real person nominal. It's real. Asset है ना stationery अपनी. Pen, pencil, stationery मतलब जो भी रहता है ना स्टेशनरी के आइटम, दिस आर आवर स्टेशनरीज, तो दिस आर असेट्स. तो ये क्या है देखो, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी. इन्वेंट्री मतलब सामान स्टेशनरी का, खरीदे बेचे कुछ नहीं है, ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस है. ये क्या है? तो रियल पर्सन विल हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, नॉमिनल विल नेवर हैव दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. और गलती से कोई भी पूछे तुम्हारे को सैलरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है और तुम आंसर दिए, वो पूछने वाले भी गधा, तुम बोलने वाले भी गधे. अंडरस्टैंडिंग. सैलरी विल नेवर हैव ओपनिंग बैलेंस. वो इसे नॉमिनल अकाउंट, वो मरते जाता फिर नया खुलते जाता. They will not have opening and closing balance, but real person will have opening and closing balance. Clear guys? तो stationery is the real account, asset account. तो उसका opening balance कितना है? 480. Again, now you purchase by check. तो I will solve this with you. Give me a minute. एक बार मैं screen ready कर लेता. Yeah guys, when you see now question, first क्या we were having opening balance for Jan 2022. तो उसके हिसाब से अपना ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा गाइस? ओपनिंग बैलेंस विल कम हियर एंड इन्वेंटरीज असेट, डेबिट बैलेंस विल हैव डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड आएगा ओपनिंग बैलेंस. अंडरस्टैंडिंग. तो जैन 2022 का फर्स्ट 2022 विल बी हैविंग ओपनिंग बैलेंस, तो विल राइट 2 ईयर वर्ड टू बैलेंस नोट डाउन. कितना था गाइस बैलेंस? इफ यू सी 480. we are having balance of 480. करेक्ट. फिर क्या हुआ गाइस? सेकंड, परचेज स्टेशनरी बाय चेक. तो पहले एंट्री बोलो. जब परचेसिंग स्टेशनरी बाय चेक, इफ यू सी द सेकंड ट्रांजैक्शन, आई एम शोइंग इन द पीडीएफ. या फिर द सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ स्टेशनरी, सॉरी परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक 800. चेक से कितना? वेट एंट्री. दो चीज़ें पहले, two things which are getting affected. Purchase of stationery by check, stationery and bank account, because check का stationery and bank account. तो we got the two aspect. Then उसके बाद क्या करना है? Creation of model. So inventory is an asset and bank is also an asset, but inventory is increasing, bank account will get decrease. Payment कर रहे तो decrease होता है, increasing same पे decreasing. Opposite effect inventory क्या थी? Stationery to bank, stationery to बैंक. तो स्टेशनरी क्या हो रहा? डेबिट. स्टेशनरी क्या हो रहा? वी आर मेकिंग विच अकाउंट गाइस? स्टेशनरी अकाउंट. तो स्टेशनरी लेजर में क्या, जनरल में क्या हुआ एंट्री में? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इट इज गेटिंग डेबिटेड. तो एंट्री के हिसाब से व्हेन यू सी हियर, स्टे फोकस हियर. तो एंट्री के हिसाब से व्हेन यू सी वी गॉट स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. करेक्ट. तो स्टेशनरी गेटिंग डेबिटेड, we will go to debit side, our rule debit account, we will go to debit side, will write reference will be given to credit to bank. कितना? 800. Understanding. Date will write the date जो भी है ना, date will write 5th Jan, तो will write here 5th. next क्या हो रहा? purchase stationery on credit from 5 star stationery mart 1280. on credit you purchase guys, on credit from 5 star mart. 5 star mart से परचेज करे. स्टेशनरी एंट्री क्या थी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार मार्ट
बिकॉज पैसे देते तो बैंक नहीं दिए तो उसको देना है. 5 स्टार मार्ट. अंडरस्टैंडिंग गाइस. कितना 1280. अमाउंट इज 1280. दिए तो टू बैंक आया, देना है तो टू अमाउंट 5 स्टार मार्ट, जो भी किसको देना है उसको. पार्टी का नहीं मैं 5 स्टार मार्ट कितना 1280. व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज, what is the date guys? 15th Jan. Understanding? So this was happening on 15th. Understanding? जैसे जैसे will be posting. तो आप इतने तीन ट्रांजेक्शन थे. If you see the question, we were having only 3 transaction. We were having only 3 transaction. अब तीनों का टोटल करो, डेबिट से हटा लेना. तीनों का टोटल कितना था आपको? 2560 आता चाहिए. आप यहाँ पे भी देखो एक बार. सो बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैंक टू 5 स्टार देने का है बोल के. वी आर गेटिंग बैलेंस 2560. तो रियल अकाउंट का बैलेंस क्या होता? रियल अकाउंट लेजर विल गेट बैलेंस. तो उसको भी इसी तरीके से विल गेट हियर. व्हाट इज द टोटल वी आर गेटिंग? टोटल ऑफ दिस 2560. वी आर गेटिंग टोटल एस 2560. तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? बाई आता व्हाट इज दैट? बाई बैलेंस कैरीड डाउन. दिस विल बी योर 31st Jan. मंथ एंड को कर देते हैं. तो विल गेट योर अकाउंट्स टैलेंट कितना? 2560. This was the balance which you carried for 31st Jan. Then you will have Feb का first day. We'll have here to balance brought down 2560. Understanding? तो ये होता अपना बैलेंस विल गेट कैरिड फॉर ईयर टू ईयर इन रियल एंड पर्सनल अकाउंट. नॉर्मल अकाउंट भी मंथली कैरिड हो सकता है, बट एट द एंड विल गो टू पीएनएल. तो उसको बैलेंस नहीं रहता, सीधा मरता, वो पीएनएल में मरता. क्लियर है गाइस? तो एंट्री बनाना है. जो डेबिट हो वही डेबिट करेंगे. रेफरेंस विल बी गिवन टू क्रेडिट. एंट्री बना के जो क्रेडिट हो वही क्रेडिट साइड में करेंगे, बट रेफरेंस विल गिवन टू डेबिट एंड टू बाई विल बी यूज्ड. और क्लोजिंग बैलेंस आई टोल्ड यू. नॉमिनल है तो ट्रांसफर करेंगे, रियल पर्सन है तो बैलेंस करेंगे, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता नॉमिनल का पीएनएल में जाता. सो दिस वाज ओनली योर फंडा फॉर लेक्चर्स विच इज वेरी सिंपल. सो एक बार पीडीएफ में देख लो. क्लियर? अब यू लुक टू इज योर होमवर्क, बिकॉज आपको यहाँ पे खुदा देता प्रिपेयर लेजर रिकॉर्ड ऑन द बेस ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर. डेबिट बैलेंसेस पूरे दे दिया कैश इन, बिकॉज इनके ओपनिंग बैलेंसेस है. बैंक का, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, गुड्स का इन्वेंट्री का अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट भी है, रिसीवेबल है. रिसीवेबल में 2 है, विजय एंड मधु के बैलेंसेस है. तो ये सबके ओपनिंग बैलेंसेस है. और क्रेडिट बैलेंसेस भी दे दे. क्रेडिट में क्या क्या रहता है? पेएबल है. पेएबल क्या है? आनंदन कपिल है 2. और कैपिटल अकाउंट है. तो दिस इज योर असेट्स एंड दिस आर योर लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. तो सबके ओपनिंग बैलेंसेस दे दिया. अब ट्रांजेक्शन हो रहे. परचेस करे गुड्स 500, पेएबल एट रिलेटेड फॉर कैश. 20% ट्रेड डिस्काउंट भी बोला, 5% कैश डिस्काउंट भी बोला. 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट. तो आपको ये पूरे अकाउंट बनाने, देखो पूरा अकाउंट बनाना पड़ता है सब में. कैश, बैंक, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, विजय, जितने भी लेजर्स पूरे खुलते हैं. पहले एंट्री बनाओ, आराम से लेजर्स खोलो और पोस्टिंग करो. क्लियर? परचेज गुड फॉर 5000. तो एंट्री क्या आएगी? परचेज टू कैश आएगी. बट 20% ट्रेड डिस्काउंट दें तो 5000 माइनस 20% हटाओ, और कैश डिस्काउंट जब पेमेंट आ रहा तब देंगे. अभी उसको कुछ भी नहीं करेंगे अपन. तो आपकी एंट्री परचेज के अंदर इफेक्ट होती है. 5000 माइनस 10%, जो भी परसेंटेज था डिस्काउंट का. सी परचेज अकाउंट के अंदर इफ आई गो नाउ, वेयर इज परचेज अकाउंट? परचेज बिल कैपिटल देखो. परचेज अकाउंट 3820. द 5000 माइनस यू विल हैव ट्रेड डिस्काउंट का रिमूवल 20% और 5% कैश डिस्काउंट का रिमूवल. बाकी सी 5000 माइनस 20%, विल गेट 10% एज 500. तो 1000 माइनस होता 4000 होता. 4000 माइनस 5% विल गेट 3800 जो भी. अंडरस्टैंडिंग? फिर रिसीव 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम 20 डिस्काउंट. विजय से कितना आना था? देखो क्वेश्चन में 2000. विजय से कितना आना था? 2000. इफ आई सी आई एम हाइलाइटिंग वंस अगेन. विजय से कितना आना था गाइस? दिस वन. विजय से कितना आना था? 2000 आना था विजय से, बट आया कितना? 1980. एंड यू गिवन 20 एज दी डिस्काउंट. तुम डिस्काउंट देते हो, तुम्हारे को लॉस है ना. एंट्री बोलो 2000 आए तो एंट्री के लिखते थे कैश टू विजय. कैश टू विजय पर डिस्काउंट दिए तो कैश 1980, डिस्काउंट लॉस फॉर यू. डिस्काउंट देना है, लॉस है
है ना, तो लॉस विल गेट डेबिटेड, तो डिस्काउंट लॉस है आपके लिए डिस्काउंट 20 और विजय 2000। अंडरस्टैंडिंग 1980 कैश 20 डिस्काउंट टू विजय। उसके हिसाब से 3 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, विजय अकाउंट में जाना दोनों का इफेक्ट देना, डिस्काउंट में जाना डिस्काउंट इफेक्ट देना, कैश में जाना कैश का इफेक्ट देना। क्लियर है? तो परचेस प्लांट फ्रॉम मुकेश 5000 एंड पेड 1000 एज अ कार्टेज ब्रिंगिंग प्लांट टू फैक्ट्री एंड अनदर 200 एज इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। याद करो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वॉट एवर एक्सपेंस इनकर टू ब्रिंग अस टू लोकेशन कंडीशन पूरे ऐड होते हैं। 5000 प्लस 100 प्लस 300, तो 5300 विल बी योर कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो आप अलग से 3 अकाउंट देखो ना, कार्टेज एंड दी इंस्टॉलेशन चार्जेस बोल के, ये सीधा मशीन को ऐड करना। तो प्लांट एंड मशीनरी 5300 टू कैश 5300 पूरे को पैसे दे दिए। क्लियर? बट पैसे कैसे कैसे गए, 5000 मशीन को गए, 100 उसको गए, 200 उसको गए, वो दिखा सकते। ठीक है, तो अब मुकेश से 5000 में खरीदे और ये दो ही पे करे, तो ये 5000 अभी पे नहीं करे, तो दिस 100 300 पेमेंट हुआ और 5000 पेमेंट करना है, तो असेट में तो आ जाता 5300 आता। व्हेन यू सी मशीन अकाउंट विल कम विद 5300। देखो प्लांट अकाउंट विल कम विद 5300, उसमें से 5000 देना है मुकेश को। मुकेश अकाउंट विल शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5000। समझ रहे फ्लो? गुड्स व्हाट सोल्ड गोस टू रहीम ऑन क्रेडिट है, पैसा है तो कैश टू सेल, पैसे नहीं है तो रहीम टू सेल्स। रहीम विल गेट अफेक्टेड, सेल विल गेट अफेक्टेड। रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन रुपीज, मतलब 50 पैसे इन रुपी। इंसॉल्वेंट का मतलब पहले याद करो, आई टोल्ड ऑलरेडी। इंसॉल्वेंट मतलब क्या है, अपने लाइबिलिटी ज्यादा हो ना असेट से, पैसे अपन नहीं पे कर सक रहे, तो अपने को देना है। रहीम कितना देना था, 600, बट मैं पूरे 600 नहीं दे सक रहा, इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट तो कुछ भी नहीं देता, कुछ तो देता 20%, 30%, 40%, 50%, 90%। क्वेश्चन क्या बोला, ओनली 50 पैसे इन रुपीज, 50 पैसे इन रुपये, 1 रुपये को 50 पैसे देता हूँ, 1 रुपये को 50%। तो वैसे 600 कितना देगा, 300, बाकी का 300 लॉस दैट 300 इज बैड डेट, 300 इज बैड डेट। क्लियर एंट्री इनकी क्या लिखती है, इससे तो रहीम टू सेल लिखते हैं, बट जो ये है ना इंस्टॉलमेंट का, इसको क्या लिखते हैं, 300 बैड डेट के वजह डाल देते हैं, 300 आयबल के डाल देते हैं, बाकी का रहीम क्लोज कर देते हैं। क्लियर? सोल्ड गोस टू राम फॉर कैश 1000, ये तो सिंपल है, कैश टू सेल्स, राम आता ही नहीं, कैश आ गया 1000। तो दैट वे यू हैव टू एंड गिव द इफेक्ट इन ऑल द। बाकी क्या देखो, बिल्डिंग का कुछ तो इफेक्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ ट्रांजेक्शन, तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। बिल्डिंग देखो कुछ ट्रांजेक्शन नहीं था बिल्डिंग का, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। इन्वेंटरी का भी कुछ नहीं था, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, अंते। बट व्हेन यू सी नॉमिनल अकाउंट, जैसे कि क्या था, परचेस, ये गधा है, ये नहीं लिखना। ईयर एंड में वो बैलेंस पेनल को जाता है, तो बैलेंस मंथ ऑन मंथ आ जाता, वही बोला मैं, मंथ ऑन मंथ वी कैन कैरी, बट ईयर एंड विल गो टू पीएनएल। तो ये मंथ है बोल के जैन टू फेब लाने के लिए बैलेंस लिखता नॉमिनल अकाउंट को, अंडरस्टैंडिंग। बट एट द ईयर एंड विल नॉट राइट बैलेंस, विल राइट टू पीएनएल, अंडरस्टैंडिंग। ईयर एंड के टाइम पे बिकॉज पीएनएल ईयर एंड पे बनता। क्लियर है? तो ये प्रैक्टिस करो एक बार। इवन मैं थर्ड वाला मैं करा था एक बार, थर्ड वन वी कैन डू, इलस्ट्रेशन थर्ड वी कैन डू, विच इज इम्पोर्टेंट। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, बट अच्छे कंफ्यूजन नहीं रहना, दो पार्टी से एक से आना एक को देना है, तो बट क्वेश्चन का वे ऑफ डिजाइन से कंफ्यूज होना चालू है तुम लोग। लेट्स सी द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर यस, वी आर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर यस द ओनर, अंडरस्टैंडिंग, विद द रिक्वेस्ट टू compile only the 2 personal account Mr. H and Mr. R in the ledger for the month of April. अप्रैल के लिए you have to maintain the 2 अकाउंट H and R, you are in the books of S। अपन एस के बुक में है 2 अकाउंट बनाना है, H अकाउंट और R अकाउंट, ये दोनों पर्सनल से देखेंगे। मिस्टर एस अपन है, मिस्टर एस के बुक्स में है ना, तो मिस्टर एस ऑफ मिस्टर आर, मतलब एस शुड गिव टू आर, अपन एस के बुक में है, तो आर के अपने लिए क्रेडिटर, आर के अपने लिए क्रेडिटर। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 15000 देना है। नेक्स्ट देखो मिस्टर एच ऑफ मिस्टर एस, मतलब मिस्टर एच ऑफ मिस्टर एस अपने को देना है। अपन एस से एच और आर की बात कर रहे हैं, आर का क्या बोला, एस ऑफ टू आर, मतलब अपन आर को देना है। फिर एच को क्या बोला, एच ऑफ टू एस, एच विल ऑफ टू एस, मतलब एच विल शुड गिव टू एस, मतलब एस को आना है। एस के हिसाब से देखो, बिकॉज मेरे इन द बुक्स ऑफ जिसके बुक में उसके हिसाब से देखना, मैं एस के बुक में हूँ, तो एस के बुक में आर क्रेडिटर है, एस के बुक में एच डेटर है, इसको देना है, इससे आना है। क्लियर है? देना कितना है 15000, आना कितना है 20000।
वह हमेशा ज़्यादा रहता है ऐसा कुछ नहीं, वो अलग अलग पार्टी से ज़्यादा कम कुछ भी रह सकता है। तो फर्स्ट विल ओपन द लेक्चर इसके एक बार या गैस। तो आई एम मेकिंग आर अकाउंट एंड आई एम मेकिंग एस अकाउंट, सॉरी एच अकाउंट। अपन तो इसके बुक में, जिसके बुक में उसका अकाउंट नहीं बनता, इसके बुक में तो इसका अकाउंट कभी नहीं आएगा, उसके बुक में दूसरे का अकाउंट आएगा। सो दिस इज योर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर से ये आप तो फुल फ्लेज लिखो, मेरे को थोड़ा स्क्रीन कंजेस्टेड है बोल के हम राइटिंग जस्ट शॉर्ट फॉर्म्स, बट आपको एग्जाम के लिए पूरा लिखना पड़ेगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट्स, you have your debit, you have your credit, you have your debit, you have your credit। तो एक ट्रांजेक्शन, बट ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस दे दिया था आर को, आर का अपन देना है आर को, तो आर का ओपनिंग बैलेंस क्या मिस एस ओस टू आर को देना है 15,000। तो देना है अपने को, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट या डेबिट गाइस, क्रेडिट रहता है। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस याद करो, तो दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, ठीक सेम इससे आना है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, ये बाई आता है इधर, बाई बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग। तो बाई टू वर्ड यूज करना जरूरी है एग्जाम में। डेट जो भी है, डेट वी कैन टेक, डेट क्या था, अप्रैल था ना, अप्रैल मंथ के लिए बोला, तो दिस वाज योर 1 अप्रैल। तो ये अपना ये 1 अप्रैल की कहानी है, क्लियर। अब आगे देखो कि ट्रांजेक्शन कोड आराम से, मिस्टर आर सोल्ड गुड वर्थ 6,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर एस। तो मैं बुक से देखकर पढ़ रहा, मटेरियल में देख लो आराम से, ऐसा के मटेरियल के सब में, ठीक है। तो आर से अपने को गुड्स आया, आर सोल्ड टू एस, मतलब एस इज परचेजिंग, एस के लिए क्या हो रहा है, आर सोल्ड कर रहा अपना एस के बुक में। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों कर रहा मालूम, अपोजिट बंदे के हिसाब से वर्डिंग से, बट अपन एक बंदे के बुक में है, क्वेश्चन एक बंदे के हिसाब से बोलता, अपन एस के अंदर है बट क्वेश्चन आर के हिसाब से बोल रहा। आर सोल्ड टू गुड्स टू एस, तो एस के हिसाब से क्या हो रहा, परचेस, परचेस की एंट्री लिखना, आर सोल्ड बोलते सोल्ड देखिए सेल्स की एंट्री नहीं लिखना, अंडरस्टैंडिंग। एस की लेके परचेस, तो परचेस की एंट्री क्या थी, परचेस टू आर, परचेस टू आर। तो कितना 60,000 एट द रेट ऑफ 10%, मतलब 60 माइनस 10, 6,000 माइनस होते तो 5,400, 5,000 सॉरी 54,000, 60,000 है ना, तो 54,000 एस परचेस करना, एंट्री क्या आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू आर, आर क्या हो रहा, क्रेडिट, आर क्या हो रहा, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में आना, बाई लिखना, रेफरेंस देना डेबिट को, परचेज अकाउंट कितना 54,000, कब हुआ ये 4 अप्रैल को, क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सी, मिस्टर एस सोल्ड मिस्टर एच गुड्स प्राइस एट 30,000, तो सोल्ड टू एस, सोल्ड टू एच फॉर 30,000, एच के लिए अपने लिए सेल्स, एस के बुक में एस सोल्ड टू एच, एस के लिए सेल्स, अपने लिए सेल्स, तो एंट्री एच टू सेल्स, एच टू सेल्स, एच क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट में आना टू सेल्स, कितना 30,000, इट इज बिकमिंग 30,000। कब हुआ ये 5 अप्रैल, अंडरस्टैंडिंग। सी नेक्स्ट वन नाउ, रिकॉर्ड परचेज 25,000 नेट फ्रॉम आर which were sold to H at a price of 15,000। तो परचेज 25 भी हुए और सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15 टू H, तो आर से खरीदे, दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं है मेरी। उसी एक बार मैं ये ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे, बिकॉज डिस्कस तो कर रहा बट एक बार प्रेजेंट भी कर लेता। हाँ या यू सी दिस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ 25,000 नेट फ्रॉम आर, तो ये अलग है। तो आर से 25,000 का खरीदे, तो एंट्री क्या थी, परचेज टू आर, परचेज टू आर, और विच वेर सोल्ड टू H एट ए प्रॉफिट ऑफ 15, सेलिंग प्राइस नहीं है ये, प्रॉफिट है 15, तो सेलिंग प्राइस कितना है 25 प्लस प्रॉफिट 15, कितना 25 प्लस प्रॉफिट 15, 30, 40, तो 40,000 में H को बेचे, आर से 25 में खरीदे, H को 40 में बेचे, दोनों भी रिकॉर्ड करना, अंडरस्टैंडिंग गाइस, दोनों भी रिकॉर्ड करो आराम से। तो H से खरीदे, सॉरी आर से खरीदे, कितना 17 को आर से खरीदे, कितना होता, तो बाई परचेस how much, 25,000, this was on 17th by purchase, but on 17th even we sold to sales with 15,000 profit, so this will become 40,000, clear है।
सी नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वाला क्या है, मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर गुड ऑफ 4th अप्रैल। तो 4th अप्रैल को अपने को दिया है, तो इसका 10% रिजेक्ट कर रहा हूँ मैं, परचेज रिटर्न 10% कितना 5400। तो रिजेक्ट करो तो एंट्री क्या होती परचेज रिटर्न की, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, परचेज अकाउंट सॉरी पार्टी टू परचेज रिटर्न, पार्टी टू परचेज रिटर्न, या सॉरी परचेज रिटर्न डेबिट कर लो, या तो मतलब परचेज रिटर्न क्रेडिट कर लो, या तो परचेज डेबिट कर लो। यू कैन राइट परचेज बढ़ता, परचेज करे तो डेबिट होता, परचेज इंक्रीज हुए तो डेबिट होता, रिटर्न कर रहे तो क्रेडिट होता, रिटर्न कर रहे तो एंट्री क्या है ना आर अकाउंट डेबिट टू परचेज, आर अकाउंट डेबिट तो खरीदो तो क्या लिख रहे गाइस परचेज टू आर, रिटर्न करे तो आर टू परचेज, उल्टा। अंडरस्टैंडिंग, परचेज टू आर या आर टू परचेज, तो आर क्या हो रहा रिटर्न में डेबिट होता, तो टू परचेज 5%, 10% बोला 5400। अंडरस्टैंडिंग, डेट जो भी डेट डालना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, Mr. has issued a cash memo of 10,000 to Mr. H, who came personally for the consignment of goods urgently needed by him। क्या हो रहा है इससे, तो H क्या करा 10,000 का कंसाइनमेंट बोल रहा हूँ, H who came personally for the 10,000 कंसाइनमेंट, तो इससे क्या समझ में आ रहा, इससे पढ़ो एक बार आराम से। सी issued a cash memo of 10,000 to Mr. H who came personally for the consignment urgently needed by him। तो S क्या करा एक कैश मेमो दिया 10,000 H को, S is giving cash memo to H। कैश मेमो जनरली रिसिट खाली एक लिख के दे रहा हूँ, कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा 10,000 का, अंडरस्टैंडिंग, तो कुछ उसका इफेक्ट ही नहीं है 10,000 का H से, क्लियर है। नेक्स्ट यू सी मिस्टर H cleared half of this due to Mr. S enjoying 0.5 है वो, देखो व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन, ये तो कैश मेमो का नो ट्रांजेक्शन, बिकॉज उसका कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आता, बस कैश मेमो दे रहा खाली, तो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आता। बट व्हेन यू सी दिस वन मिस्टर एच, जो क्या बोलते अपने को आना है ना, तो अपने को दिया क्लियर इज ड्यू टू एस एंजॉइंग 0.5%, ये 1/2 मतलब के हाफ है, हाफ 0.5% कैश डिस्काउंट 1.5% है, और कैश डिस्काउंट ऑफ द पेमेंट रिसीव 20,000 वॉज बाई चेक, जितना पेमेंट आ रहा 20,000 चेक से आ रहा, 20,000 चेक से आ रहा। टोटल कितना आना एच से कितना आना है 20, 30, 40, 20, 30, 40, व्हेन यू सी इन आवर रिकॉर्डिंग कितना आना 20, 30, 40, एच से कितना आना 20, 30, 40 मतलब कितना 20 + 30, 50 + 40, 90, 90 का 0.5% हटा दो, 90 का 0.5% हटा, और उसका 20,000 चेक से आ रहा, बैलेंस कैश में आ रहा, अंडरस्टैंडिंग, तो 90,000 इंटू 0.5% करो, बैलेंस हटा दो, क्लियर है। या गाइस, तो व्हेन यू सी अपना टोटल 90,000 देना है, बट उसका हाफ दे रहा था हूँ, तो इट इज ओनली योर 45,000, 45,000 के लिए वी गिवन हिम 0.5 का परसेंटेज। तो व्हेन यू सी द क्वेश्चन इट इज सेइंग हाफ ऑफ द वॉट एवर ड्यू द टोटल ड्यू का नहीं, हाफ ऑफ द ड्यू की बात हो रही, तो टोटल ड्यू 90 था, उसका हाफ 45,000 होता, वो हाफ का पैसे देने के लिए 0.5% डिस्काउंट लिया, तो 0.5 का कितना था 225 आता, कितना 225, तो 225 45,000 में से माइनस करे, 45,000 में से 225 माइनस हुआ तो माइनस 45 कितना आएगा, इट विल कम टू 44,775, 44,775 देना हूँ फॉर 45,000। सी क्वेश्चन क्या बोला हाफ ऑफ द ड्यू, अंडरस्टैंडिंग, तो 45,000 का 90,000 का हाफ 45,000 होता है, उस पर 0.5% डिस्काउंट 225 है, वो हटाए तो 4,475 देना हूँ, इसमें से 20,000 बैंक में आया, 20,000 बैंक में, तो बैलेंस कितना है फिर 24,775 कैश में आता, तो आपको कितना आ रहा बाई बैंक, H is paying bank loan 20,000 and by cash he is paying 24,775 एंड अपने को डिस्काउंट दिया उसको 225 का, तो दिस इज बाई डिस्काउंट, तो ये पूरे 45,000 का हिसाब है, क्लियर है, एक ही दिन हुआ ये पूरा। तो C1 से PDF एक बार, ये हाफ बोला देखो,
cleared half of the total due, तो 45,000 का 0.5 20 by चेक, क्लियर है। फिर आर के बारे में, आर टोटल ड्यू प्लस 10,000 हेल्ड बैक, तो 10,000 माइनस करके 10,000 माइनस करके तो टोटल ड्यू का 10,000 माइनस करो। वेरी क्लियर्ड बाई चेक, एंजॉइंग कैश डिस्काउंट 1,000 ऑन पेमेंट, तो सिंपल है। तो 10,000 होल्ड करना पड़ा आर का, अपने मटेरियल अपने वर्किंग में देखे तो आर कितना दे रहा था, आर के हिसाब से कितना देना आर, तो ही शुड पे 15 54 एंड दिस 25 माइनस 5,500, तो कितना होता 15 प्लस 24 प्लस 25 माइनस 5,400, इट विल कम टू, कैलकुलेट यूज करो, कितना आएगा, यू हैव टू होल्ड ओनली 1,000, तो कैलकुलेटर के हिसाब से टोटल विल कम टू, सो जितना भी टोटल है ये दिस, यू हैव टू टोटल दिस, यू हैव टू टोटल दिस एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, और उसमें से 10,000 होल्ड करना, तो माइनस 10,000 पे और 1,000 डिस्काउंट है, तो सब हटाए बाद पेमेंट कितना था टोटल गए 7,7,600, विल गेट द टोटल पेमेंट ऑफ 7,7,600। ये 7,7,600 कैसा है, फिर से बोलो, क्वेश्चन क्या बोला, जितना भी ड्यू था उसमें 10% होल्ड करना है और 1,000 डिस्काउंट देना है, तो दिस वाज द टोटल ड्यू, ये टोटल ड्यू आता है, ये पूरा नेट करने से ये 3 ऐड करना, 5,000 माइनस करना, टोटल ड्यू, उसमें 10,000 माइनस होल्ड करना और 1,000 डिस्काउंट माइनस करना, तो 7,7,600 इज द पेमेंट विच वी आर पेइंग, तो इट विल बी टू कैश अकाउंट और 1,000 विल बी योर डिस्काउंट, क्लियर है। उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू नाउ, नेक्स्ट पढ़ो आराम से आप, क्लोज हेच अकाउंट, हेच जिससे अपने को पैसे आना, टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट, बट एक बार दिस इज इम्पोर्टेंट वन, दैट द रीजन आई एम लेटिंग यू सी एक बार पीडीएफ से, तो लास्ट पॉइंट क्या बोला देखो, क्लोज हेच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000 was cleared by him by check because he was declared bankrupt, all but 5,000 was cleared by him, ये वर्ड का मतलब समझा मेरे को, all but 5,000 was cleared by him, मतलब all but 5,000 was cleared by him, इसका मतलब क्या, see he is becoming bankrupt, मतलब सेम लाइक इंसॉल्वेंट समझो, एज ऑफ नाउ इंसॉल्वेंट हो रहा हूँ, तो उससे कितना आना अपने को, एज ऑफ नाउ अपने को आई थिंक यू शुड गेट 45,000, याद है 90%, 90 में से 45 का हिसाब कर लिए थे, तो और 45,000 देने का है वो, तो 45,000 में से क्या बोल रहा, ऑल बट 5,000 was cleared by him, मतलब क्या 5,000 दिया, 40,000 लॉस है, 45 में से 5 आ रहे हैं या 45 में से 4 आ रहा, 5 लॉस है, सी आर ऑल बट 5 मतलब क्या है, 5 पूरे आ रहे, खाली 5,000 नहीं आ रहे, इसका मतलब वही, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट क्या है, ऑल बट 5,000 was cleared by him, मतलब खाली 5,000 का डाउट है, 5,000 इज बैड डेट, रिमेनिंग 40 इज क्लियर, आ जा रहे, तो एंट्री क्या आएगी आपकी, व्हेन यू सी द एंट्री शुड बी, तो यहाँ पे यू आर रिसीविंग हेच अकाउंट राइट, हाँ यस, सो यू आर रिसीविंग 40,000 एंड 5,000 is your bad debt, so you will be receiving this by your cash and this will be by bad debts, understanding, तो in that way ये अकाउंट क्लोज हो जाता, इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं रहता, ये अकाउंट टैली करना पड़ता, ऑब्वियसली इसमें 10,000 बैलेंस आता, बिकॉज 10,000 आप होल्ड करें ना वही बचता आर में, हेच अकाउंट क्लोज हो जाता, बिकॉज बैड डेट हो गया ना पूरा, अपन 5,000 लॉस में एंट्री पास कर ली, ये आपके को 4,000 आते इधर, क्लियर है, दिस इज द सम विच एक्चुअली थोड़ा बहुत वर्डिंग के कारण कंफ्यूजन हो सकती है बोल के इट, सो इन दैट वे वी कंप्लीटेड योर लेक्चर, पूरे सम्स भी कर लिए जितने भी इंपॉर्टेंट है, पूरे सम्स कर लेके वी कंप्लीटेड योर लेक्चर, सो व्हेन आई समराइज दिस लेक्चर, कुछ भी नहीं है गाइस, क्लासिफिकेशन के लिए यू शुड हैव द 3 स्टेप, ओपनिंग, पोस्टिंग, क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग। पोस्टिंग का रूल, जो डेबिट है वो डेबिट होता, तो डेबिट साइड में इफेक्ट आता, बट डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बाय यूजिंग द वर्ड टू, क्रेडिट अकाउंट जो अकाउंट क्रिएट हुआ जनरल में वही लेजर में भी क्रेडिट होता, बट डिफरेंस विल बी गिविंग टू डेबिट बाय यूजिंग द वर्ड बाय, और नॉर्मल विल गेट close by transferring the balance to biggest nominal P&L, and real person will get balance and the balance will transfer to balance sheet. This is the funda of ledger. Clear? So I will see you next lecture with the trial balance.